Good morning, my dear students. How are you? Hope you are safe and fine. Let's continue our chapter, The Age of Farming. Peoples started their farming and they domesticated the animals in Neolithic age. We have learned all this, but next topic is your inventions of the wheel. Let me explain how the wheels invented. Here you can see a little video. You can understand the invention of the wheel. In the starting, they lived in the jungle, peoples, and they were the hunters and gatherers, and they have to carry their huntings for a long distance. Maybe one day they saw the rolling log of wood down from the slope, right? Then they kept the animal on the log of wood, but animal was displaced from its place, right? They realized that they have to cut their one piece of wood from it, and they cut it and used it as a wheel. So it came to know as a wheel. They used as a wheel to carry their huntings. Further, they used in the other vehicles, right? During this period, the wheel was also invented. Neolithic age में क्या था? Invention जो थी wheel की, it was developed. इससे क्या हुआ? Development हुई early humans की, और know about the how to ideas the wheels ऊपर कैसे, जैसे मैंने आपको लिटिल स्टोरी से आपको बताया है कि कैसे रोलिंग लॉग जो है या फिर स्टोन उन्होंने देखा होगा जिससे व्हील जो है उन्होंने बनाया. People could not travel more easily. In early peoples जो थे, they could not travel more easily, and they could not carry most of the goods easily. But after the invention of the wheel, they carried lots of goods easily. The invention of the wheel also improved pottery making. Means जो मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, they were used in pottery makings. In fact, it was during this age that pottery's wheels came to be used. जैसे ही wheel की invention हुई थी, उसके बाद इसका यूज जो है वो गुड्स को, चीज़ों को कैरी करने के लिए, या फिर हैवी जो मटेरियल, हैवी लोड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और लास्टली जो है फिर उसका यूज जो है पॉटरी मेकिंग के लिए भी किया जाने लगा था. बिगनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ, राइट? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट they started the agriculture in the Neolithic age, and they settled they part their a settled life. Archaeologists have found the trace of the huts of houses in Burzoms in Kashmir. Archaeologists found many of the huts and houses. They engraved the earth, they engraved the upper layer, and they found the many of huts and houses made up of pit. यानी मिट्टी से बने हुए कई हाउसेस जो है उन्होंने खोद कर निकाले हैं आर्कोलॉजिस्ट ने, जिससे लगता है कि वो जो है एज ए सेटल्ड लाइफ जो है उन्होंने स्पेंड करनी स्टार्ट कर दी थी. विच वर डग इनटू द ग्राउंड एंड विद स्टेयर्स. ये जो हाउसेस उन्होंने बनाए थे, ये हाउसेस जो हैं डग करके, ग्राउंड को डग करके बनाए जाते थे, और ये इनसाइड द अर्थ, मतलब जो ऊपर का लेवल है उससे नीचे बनाए जाते थे, और ये किससे कनेक्ट होते थे, वहाँ जो है स्टेप्स बनाई जाती थी इनसाइड देम, एंड दिस माइट बी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड वेदर. ये बनाए जाते थे ताकि जो कोल्ड वेदर है उससे प्रोटेक्शन हो सके, और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा हवा
और ज़्यादा गर्मी से भी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड जो चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट मिलता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा वहाँ ठंड होती है। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड कुकिंग हर्ट्स, मीन्स जो मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं बोथ आउटसाइड एंड द इनसाइड द हर्ट्स। दे फाउंड द मैनी ऑफ द स्टोव्स लाइक outside the earth for they were using for it for cooking, and they shows that according to the weather people could cook food either inside the hut or outside. They were used these stoves, these huts for the cooking of the foods, right? आज भी जो एट प्रेजेंट भी है, आप कई विलेजेस एरिया में देखते हो कई टाइप ऐसे जो हैं चूल्हे जो हैं फॉर कुकिंग घर के बाहर जो बने होते हैं। बुज़ोम जो है जम्मू कश्मीर में इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिकल साइट है, जहाँ पर कई टाइप की पेंटिंग्स भी जो है एनग्रेव करके निकाली गई हैं, मतलब खोद कर निकाली गई हैं। और ये पेंटिंग्स जो हैं वो क्या हैं, ये डिपिक्ट करती हैं कि 2 हंटर्स जो हैं वो हंटिंग कर रहे हैं एक डियर की, एंड चेयर रिमेन ऑफ ग्रेन्स, कई टाइप की सीड्स भी वहाँ पर निकले हैं और कई टाइप के ग्रेन्स जो हैं वो भी वहाँ पर मिले हैं, फाउंड हुए हैं। Here you have to tick the 2 answers. You have to find from these 2 paragraphs. And the last, Neolithic tools. Most 2 Neolithic tools were used, mortar and the pestles, जिसे हम कहते हैं कि they were used for the crushing, जिसे हम ओखली एट प्रेजेंट हम कई घरों में ओखली भी बुलाते हैं, जिसे यूज़ किया जाता है फॉर द क्रशिंग ऑफ द मटीरियल्स, और दे प्रिपेयरिंग फूड फॉर यूजिंग बोथ ऑफ दीज, एंड दे वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स, यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग करने के लिए भी। न्यूलिथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पैलोलिथिक टूल्स। पैलोलिथिक टूल्स जो यूज़ किए जाते थे दे वर नॉट फिनिश्ड, और ना ही उन पर जो है शार्प नहीं होते थे। पैलोलिथिक टूल्स जो यूज़ किए जाते थे ना ही फिनिश्ड होते थे, ना ही शार्प किए होते थे, ना ही पॉलिश किए होते थे, बट इन न्यूलिथिक टूल्स दे कन्वर्ट इनटू वेरी शार्प, राइट? Neolithic tools were well polished with a fine cutting edges, right? उनकी edges जो है Neolithic tools की बहुत fine होती थी, well polished होते थे। Paleolithic tools however continued to be made and used, बट जो Paleolithic tools जो होते थे वो polished भी नहीं होते थे, और edge जो होती थी उनकी ज़्यादा sharp भी नहीं होती थी। Some tools were also made using bones, कई टूल्स जो हैं कई जो वेपन्स बनाए जाते थे वो बोन्स से भी बनाए जाते थे। एंड द न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन बुरज़ोम इन कश्मीर एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कर्नाटका लाइक मस्की, ब्रह्मगिरी, नसीरपुर एंड द हलोर इन कर्नाटका। बोथ वर द sites we have found that the Neolithic tools were found in both of the sites, right? The next we will cover in the next class, students. Till then you try to fill up your exercise and learning work also going on, so do your work daily beta.